Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, electric current and its effects. Introduction. In the previous class, you have read how charge develops and moves to make the current flow. You have also read that metals like copper allow electrons to flow through them. The motion of electrons in solid conductors like metals makes the electricity flow. In liquid conductors, movement of electrically charged particles cause the electric current to flow. This flow of charge is called current. ओके, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि किस तरह से चार्ज डेवलप्स होते हैं और मूव करते हैं जिससे कि आपका करंट फ्लो बनता है. और आपने ये भी पढ़ा था जैसे कि कुछ मेटल्स जो होते हैं जैसे कि कॉपर, वो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं कि वो इजीली उनमें फ्लो कर सके. तो जो मोशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का सॉलिड कंडक्टर्स में जैसे कि मेटल्स, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को बनाते हैं. और लिक्विड कंडक्टर्स में जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स का, वो इलेक्ट्रिक करंट उनकी वजह से फ्लो करता है. सो दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. 11.1 Behavior of electric charges. Atoms are made of even smaller particles called subatomic particles. These subatomic particles are protons, neutrons and electrons. Both protons and electrons have a basic property called electric charge. However, the kind of charge is not the same for both the particles. Protons have a positive charge, which is shown by a plus symbol. Electrons have a negative charge, which is shown by a minus symbol. Neutrons are neutral as they have no electric charge. How do these electric charges behave? Now, we will know more about electric current and its effect. देखिए, आपके जो एटम्स है ना, वो और भी छोटे पार्टिकल्स से बने हैं जो आपके होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की एक बेसिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. हालांकि जो काइंड ऑफ चार्ज है ना, इन दोनों में सेम नहीं. आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि आपके न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता. तो फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बिहेव करते हैं, चलिए देखते हैं. Everything in this world needs a driving force to move, and so also electric charges and electrons. There must be a driving force to push or pull the charge. A force is the pull or push on an object. It can push objects together or pull them apart. When charged particles come close to one another, they give it rise to these two different forces. The force that pulls objects together is the force of attraction. This force of attraction exists between two opposite charged particles. So negatively charged electrons are attracted to positively charged protons. The force that pushes objects apart is the force of repulsion. This force of repulsion exists between particles of the same charge. So negatively charged electrons repel one another just as positively charged protons do. Thus, we can say that like charges repel each other while unlike charges attract each other. देखिए, जितनी भी चीज़ें ना इस वर्ल्ड में, हर किसी को एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए, है ना. तो जैसे कि आपके जो चार्जेस होते हैं उसका मतलब उनको जो पुश या पुल किया जा रहा है, देयर इज ऑल्सो ए ड्राइविंग फोर्स. फोर्स आपका क्या होता है, पुल एंड पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट को पुश कर सकता है टुगेदर या उनको पुल कर सकता है अपार्ट. तो जब चार्ज पार्टिकल्स आपके एक दूसरे के पास आते हैं तो इससे आपके दो डिफरेंट फोर्सेस आपके राइज होते हैं. तो एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें जो दो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. यानी कि जैसे कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे. जैसे कि देखिए, ये अनलाइक चार्जेस है, एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब फोर्स ऑफ रिपल्शन में क्या हो रहा है कि दो लाइक चार्जेस यानी कि एक जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये लाइक चार्जेस है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. देयर इज नो अट्रैक्शन. ओके, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. 11.2 इलेक्ट्रिक करंट. You know that the closed path along which electric current flows is called electric current. आपका देखिए एक closed path है जिसमें आपका electric current flow करता है, that is your electric circuit. Okay, this path is
formed by or wire made of suitable conducting materials such as copper and aluminium. The flow of electrons through a wire is called electric current. So current simply means the number of electrons that pass a given point in a unit of time, or the electrons rate of flow. Higher the electric current in a wire, more electrons are passing through it. Okay. अब आपके देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होता है, एक आपके उसमें आपका एक सूटेबल कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए जैसे कॉपर है या एल्यूमिनियम. तो जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वायर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट का सिंपली मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास हो रहे हैं इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम. ओके, या फिर हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रेट ऑफ फ्लो. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हाई होगा वायर में, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास करेंगे. द सिंबल ऑफ करंट इज अ लेटर आई. करंट को हम आई से डिनोट करते हैं. द एसआई यूनिट इन विच करंट इज एक्सप्रेस्ड इज एम्पियर. ओके, द एम्पियर और एम्प फॉर शॉर्ट is a unit of measurement of the rate of electrons flow current in an electrical conductor. Scientists use instruments such as a meter and galvanometer to measure current. देखिए करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई सिंबल से, एंड इसको मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है एम्पियर में, यानी इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. साइंटिस्ट एमीटर और गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए. The production of current by the discharge of a charged body usually lasts for a very short time. If we want a current to flow in a conducting wire for a prolonged period of time, we must connect the wire between two terminals of a source, providing a steady production of charge. The common source of current are chemical based cells, solar cells and dynamos. Okay. अब क्या होता है, देखिए जो प्रोडक्शन होता है करंट का by the discharge of a charged body, वो आपका यूजुअली बहुत थोड़े टाइम के लिए लास्ट करता है. तो अगर हम चाहते हैं कि करंट आपका फ्लो करता रहे कंडक्टिंग वायर में लंबे समय के लिए, तो हमें वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा दो टर्मिनल्स के बीच में ऑफ अ सोर्स, जो कि क्या करेगा, एक स्टेडी प्रोडक्शन ऑफ चार्ज को प्रोवाइड करेगा. अब कॉमन सोर्सेज होते हैं करंट के, और क्या होते हैं, केमिकल बेस्ड सेल्स, सोलर सेल्स या फिर डायनामोस. A device in which a potential difference is maintained between its two terminals by the conversion of chemical energy into electrical energy is called a chemical base cell. In a solar cell, solar energy is converted to electrical energy to produce a potential difference. A dynamo is a device which converts mechanical energy into electrical energy. ओके, अब एक डिवाइस जिसमें आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन्ड होता है इसके दो टर्मिनल्स के बीच में, ये होता है कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे कहते हैं केमिकल बेस्ड सेल. सोलर सेल में क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे कि एक पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करती है. एंड डायनामो एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. 11.3 डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स. A steady current flowing in one direction only is called a direct current, or simply DC. The current in dry cells and batteries is direct current. The electric current which moves back and forth, reversing its direction regularly, is called alternating current, or simply AC. The current we use in our homes is AC. In AC, direction of flow of current is bidirectional, whereas in DC it is unidirectional. देखिए जो आपका करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, आपका वो डायरेक्ट करंट होता है या डीसी. ओके, जैसे कि आपका ड्राई सेल या जो बैटरीज में जो करंट होता है. जबकि अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है बैक एंड फोर्थ, मतलब आपकी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है रेगुलरली, वो अल्टरनेटिंग करंट है, या सिंपली हम उसे कहते हैं एसी. एसी अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी इज डायरेक्ट करंट. जो हमारे घरों में यूज होता है वो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो जो एसी होता है उसमें जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो बाई डायरेक्शनल है, दो डायरेक्शन में होता है, जबकि डीसी में यूनी डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा. इट इज फाउंड दैट अल्टरनेटिंग करंट बिगिंस फ्रॉम जीरो, flows in one direction, gradually rising to a maximum value. It then decreases to zero at the same speed. At this point, the current reverses its direction of flow and increases to its maximum value. Again, it decreases to zero. Thus, it completes one cycle of waxing and waning. The current used in our homes repeats 50 cycles in 1 second. That is, its frequency is 50 hertz. देखिए, alternating current आपका शुरू होता है जीरो से, ओके, एक डायरेक्शन में बढ़ता है, फ्लो करता है, फिर ग्रेजुअली एक मैक्सिमम वैल्यू तक राइज करता है, फिर अगेन ये डिक्रीज हो जाता है जीरो पे, सेम स्पीड पे. इस पॉइंट पे जो करंट है अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है.
ओके। एंड इसके बाद क्या होता है, जब ये रिवर्स करेगा अपनी डायरेक्शन को तो इंक्रीज हो जाती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगेन ये आपका 0 पे आ जाता है। तो ये अपना एक जो साइकिल है वैक्सिंग एंड वेनिंग का वो कंप्लीट करता है। तो जो करंट हमारे घरों में यूज़ कर होता है ना वो 50 साइकिल्स 1 सेकेंड में यूज़ करता है, रिपीट करता है। दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। If you draw a graph of the strength of current against time, it would look different for DC and AC. In DC supply, the loss of energy in the conductor is much more. It is economical and easier to produce and transmit AC over long distances than DC. देखिए अगर हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना DC एंड AC का, तो वो कुछ इस तरह से आपका आएगा, दिस इज DC एंड दिस इज AC, ओके। अब आपका जो DC में जो सप्लाई होता है ना, DC सप्लाई में जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम AC की बात करें तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है और उसको प्रोड्यूस करना ईजियर होता है, ट्रांसमिट करना ईजियर होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। 11.4 अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Depending upon the conductor through which the electric current flows, it is transformed into different forms of energy. If it is changed into heat energy, we call it heating effect. If it is changed into chemical energy, it is called chemical effect. Okay. अच्छा देखिए, आपका जैसे करंट फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि अगर हम इसको चेंज करते हैं हीट एनर्जी में तो इसे कहेंगे हीटिंग इफेक्ट। अगर इसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा देन इट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट। सो नंबर 1, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई एम श्योर आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। When current passes through a metallic wire, heat is produced. This is known as the heating effect of current. This effect is used in heating appliances such as electric iron, room heaters, geysers, oven and toaster. देखिए जब कोई भी करंट आपके मेटालिक वायर पे आपका पास होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। और इसको यूज़ किया जाता है हीटिंग अप्लायंसेस में, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, राइट, आपका हीटर्स होते हैं, रूम हीटर्स, गीजर्स, ओवन या टोस्टर। ऑल डिवाइसेस हैव अ पार्ट कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट which gets heated when electric current passes through it. तो इनका एक जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना वो हीट हो जाता है जब करंट पास होता है इसमें। This heating element is made from coils of a high resistance wire made of nichrome alloy. When these appliances are connected to power supply by copper wires, a large amount of heat is produced in the heating coils because they have high resistance, but a negligible heat is produced in the connecting wires because copper wires have low resistance. तो देखिए ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये आपके बने होते कॉइल से। किसकी कॉइल से? हाई रेजिस्टेंस वायर के, जो आपके बने होते हैं निक्रोम अलॉय से। तो जब इन अप्लाइंसेस को कनेक्ट किया जाता है पावर सप्लाई के साथ बाय कॉपर वायर्स, बहुत अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है हीटिंग कॉइल्स में। हीटिंग कॉइल्स में क्यों होता है? क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस से बने होते हैं, इनका हाई रेजिस्टेंस होता है, जबकि नेग्लिजिबल हीट आपका प्रोड्यूस होता है कनेक्टिंग वायर्स में, क्योंकि जो कॉपर वायर्स होते हैं इनका लो रेजिस्टेंस होता है। नंबर 2, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Electric current passing through a solution of a chemical breaks it into its constituents. This is called chemical effect of electric current. For example, water on passing electric current breaks up into oxygen and hydrogen. Separation of constituent ions under the action of electric current is called electrolysis. Liquid solutions such as salts and acid solutions, which are good conductors of electricity, are called electrolytes. When an electric current is passed through an electrolyte, the constituent positive ions are attracted towards a negative electrode and deposited there. This effect of current is used in plating materials with a thin coat of a metal, and the process is called electroplating. For example, iron is electroplated with a coat of nickel and chromium to prevent it from rusting. अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, एक सोल्यूशन में पास किया जाता है किसी भी अगर केमिकल में, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाता है। तो ये आपका केमिकल इफेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन्हीं दो चीज़ों से तो ये बना है। तो जो सेपरेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। अब आपके जो लिक्विड सोल्यूशंस होते हैं जैसे कि सॉल्ट या एसिड सोल्यूशन की हम बात करें, ये आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है।
जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉजिटिव आयंस है ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर ये जो इफेक्ट होता है करंट का, इसको यूज़ किया जाता है मटेरियल्स को प्लेटिंग करने में। मतलब जैसे कि किसी भी मेटल की थिन कोटिंग करनी है तो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन जो है इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है निकल और क्रोमियम की कोट से ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In 1820, Hans Christian Ørsted performed an experiment which demonstrated the effect of electric current. A current carrying wire behaves like a magnet, that is, a magnetic compass near it gets deflected. When current is passed through a coil, it also behaves like a magnet. One of its faces becomes the north pole and the other south. If we reverse the direction of current in the coil, the two poles exchange places. If we insert a piece of iron in such a coil, its domains will get aligned in the direction normal to the face of the coil. This piece of iron will thus get strongly magnetized. On the basis of this experiment, he concluded that a magnetic field is created around a coil carrying the electric current. This is known as the magnetic effect of electric current. This principle is used to produce powerful electromagnets. Magnetic effect of current is also used in electric motors. एक साइंटिस्ट थे आपके हैंस क्रिस्टियन ऑस्टोड, 1820 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्हें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चला। तो करंट कैरिंग वायर जो होती है ना वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी कि अगर आप मैग्नेटिक कंपास अगर उसके पास होगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब करंट को एक कॉइल में पास किया जाता है तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसका एक फेस जो है नॉर्थ पोल बच जाता है और दूसरा साउथ पोल। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तब तो जो दोनों जो पोल्स होंगे ना वो अपने प्लेसेस एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि पहले जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा और जो पहले साउथ था वो आपका नॉर्थ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एक आयरन की पीस को इंसर्ट करते हैं कॉइल में तो उसका जो डोमेन है ना वो अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द फेस ऑफ द कॉइल। तो जो पीस है फिर आयरन का वो आपका स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अराउंड अ कॉइल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रही है और इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इस प्रिंसिपल को यूज़ किया गया पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का उसको इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Number 1, electric bulb. The heating effect of electric current is used in electric bulbs to produce light. The main parts of the bulb are a glass cover, inert gas enclosed in the glass cover, and a tungsten filament. When electric current passes through a thin, high resistant tungsten filament of an electric bulb, the filament becomes white hot and emits light. It glows quite brightly. Tungsten is used because it has a very high melting point, so it gets heated to a very high temperature and still does not melt. जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो मेन पार्ट होता है बल्ब का वो क्या होता है, ग्लास का कवर होता है ना, कांच का एक कवर होता है, इनेट गैस होती है जो एनक्लोज्ड होती है उस ग्लास कवर में, और एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उस थिन हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट में ना, तो जो फिलामेंट है वो वाइट हॉट हो जाता है जिसकी वजह से वो लाइट एमिट करता है। फिर ये बहुत ही ब्राइटली ग्लो करता है। टंगस्टन को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, तो ये हाई टेम्परेचर पे हीट हो जाता है लेकिन मेल्ट नहीं होता। Number 2, electric fuse. An electric fuse is another important application of the heating effect of current. It is a safety device. Fuses are inserted in the electric circuits in every building with electricity supply. आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है ये भी आपका, इसमें भी आपका जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो यूज़ होता है। ये आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है। तो फ्यूजेस को इंसर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हर बिल्डिंग के विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। There is a certain maximum amount of current which can safely flow through a circuit. But at times, the current flowing through an electric circuit exceeds the limit. In such a case, the wires may get overheated and catch fire. But a fuse can save us from this. A fuse wire is made from an alloy of lead and tin which has a low melting point.
When the current flowing in the circuit exceeds a certain value, the fuse wire gets overheated, melts and breaks the circuit. This prevents fire and damage to various electrical appliances. Nowadays, we use MCB, miniature circuit breaker, as a safety device instead of fuse. When current flowing through the circuit exceeds its limits, the MCB trips and switches off, cutting off the electricity supply. It can be reset by pressing a switch after repairing the fault. अच्छा देखिए, एक ना सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट होता है जो सेफली फ्लो करता है आपके सर्किट में. तो कई बार क्या होता है, जो करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में उस लिमिट से एक्सीड हो जाता है. तो ऐसे केस में जो है वायर ओवर हीट हो जाती है, उनमें आग लग जाती है. बट एक फ्यूज़ क्या करता है, वो इस जो आग लग जाती है उससे बचाता है. मतलब जो आपका फ्यूज़ होता है वो एक अलॉय से बना होता है, लेड और टिन के, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो जब करंट एक्सीड होगा तो फ्यूज़ क्या होगा, वो ओवर हीट होकर मेल्ट हो जाएगा, जैसे सर्किट ब्रेक हो जाएगा. फिर इससे फायर को प्रिवेंट किया जा सकता है. लेकिन आजकल क्या है ना, MCBs का यूज़ करते हैं, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एक सेफ्टी डिवाइस है. तो जब करंट फ्लो करता है सर्किट में अपनी लिमिट से एक्सीड में, तो जो MCB है वो ट्रिप हो जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है. और उसके बाद इसको रीसेट किया जा सकता है. कैसे? स्विच को प्रेस करते हैं, मतलब फॉल्ट अगर रिपेयर हो गया उसके बाद हम स्विच को प्रेस कर सकते हैं. Earthing. To make handling of electrical appliances safe, their metallic bodies are earthed. Earthing means connecting the metallic bodies of electrical appliances to the earth. The wire leading to earth is called earth wire or ground wire, and the appliance is said to be earthed or grounded. This makes sure that any current that may accidentally flow through the metallic body frame of the appliance is led into the ground through the ground wire. देखिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की हैंडलिंग को सेव करने के लिए उनकी मेटालिक बॉडीज़ को अर्थ किया जाता है. अर्थिंग का मतलब है कि मेटालिक बॉडीज़ जो है ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, उनको कनेक्ट करना अर्थ के साथ. तो जो वायर जो अर्थ तक लीड करती है वो आपकी अर्थ वायर है, ग्राउंड वायर है, और जो अप्लायंस है उसको अर्थ या ग्राउंडेड कहते हैं. तो ये मेक श्योर करता है कि जैसे कभी भी जो एक्सीडेंटली करंट जो है उस मेटालिक बॉडी के थ्रू अगर फ्लो भी करता है तो डायरेक्ट आपके अर्थ तक वो चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है उस ग्राउंड वायर के थ्रू. Electrical safety precautions. Working with electricity is a dangerous task, so it is vital to follow safety precautions. Number 1, never handle appliances when your hands are wet or when you are standing in water. As you know, water is a good conductor of electricity. If you are wet, you may unwillingly become an alternate path for the flow of electricity. Number 2, never run wires under carpets. Breaks or frays in the wires are not easily noticed. Such breaks cause short circuits. A short circuit represents a shorter and easier path for electron flow. It can be very dangerous as electricity flowing through the break may cause shock or lead to fire. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये डेंजरस भी है. डेंजरस मतलब आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे. जैसे कभी भी आपको पता है वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो कभी भी वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हैंडल ना करें, या फिर अभी कभी आप पानी के आसपास हैं, है ना, क्योंकि आप फिर क्या बन जाते हैं, ऑल्टरनेट पाथ बन जाते हैं फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कभी भी वायर्स को कारपेट्स के नीचे ना रखें, क्योंकि देखिए जो ब्रेक्स या फ्रेज होते हैं ना वो इजीली नोटिस होंगे नहीं, क्योंकि वो कारपेट के नीचे, तो इनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना. और फिर क्या होता है कि जब आपका ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा इन ब्रेक्स के थ्रू, तो उसकी वजह से शॉक लग सकता है और फिर आग भी लग सकती है. Number 3, never overload a circuit by connecting too many appliances to it. Each electric circuit is designed to carry only a certain amount of current safely. Overloading may cause a short circuit and a fire. Number 4, proper maintenance. Always repair worn-out wires. Don't put your fingers in an electric socket. Never put a utensil in a toaster that is plugged in. Replace worn-out wires and maintain the existing ones properly. Number 5, proper earthing. All appliances must be properly earthed. And number 6, never use main supply. The main supply must never be used to conduct any experiment that involves electricity. देखिए, कभी भी ना आपको एक सर्किट को ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक सर्किट को ना इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को ही कैरी कर सकता है सेफली. ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट के बाद आपकी आग भी लग सकती है. कभी भी वर्न आउट वायर्स हो उन्हें हमेशा रिपेयर कर दें. अपने फिंगर्स को इलेक्ट्रिक सॉकेट में नहीं डालें. आपका जो टोस्टर जो कि प्लग्ड इन है उसमें कोई भी यूटेंसिल ना डालें. हमेशा वर्न आउट वायर्स को रिप्लेस करें
और जो एग्जिस्टिंग वन है आपकी, मतलब जो आपकी है एग्जिस्ट कर रही है, उनको मेंटेन करके रखे। सारे अप्लायंसेस को प्रॉपरली अर्थ करना चाहिए, और कभी भी जो मेन सप्लाई है ना, वो उसको किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए कभी यूज़ ना करें जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है। 11.5 electric circuits. If you connect one wire from a terminal on a dry cell to a small flashlight bulb, nothing will happen. Now connect another wire from the bulb to the other terminal of the dry cell. The light is switched on immediately. You have simply provided a path with the flow of electrons. You have made an electric circuit. If you remove one of the wires, the light is switched off again. An electric circuit provides a complete closed path or circle for electrons to flow. By removing one of the wires when the light is switched off, you have broken the circuit. देखिए, अगर आप एक वायर को कनेक्ट करेंगे ड्राई सेल के एक टर्मिनल से और टू अ स्मॉल फ्लैश लाइट बल्ब, नथिंग विल हैपन, राइट। लेकिन अगर आप दूसरी वायर को कनेक्ट करेंगे बल्ब से ड्राई सेल के दूसरे टर्मिनल में, तो लाइट जो है स्विच ऑन हो जाएगी इमीडिएटली, क्योंकि उसको पाथ मिल गया, यानी फ्लो ऑफ करंट्स को पाथ मिल गया, मतलब आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। अब आप उन वायर्स में से एक को रिमूव कर दीजिए, फिर से लाइट स्विच ऑफ हो जाएगी, क्योंकि आपने सर्किट को ब्रेक कर दिया है। अ सिंपलर वे ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज विद अ स्विच. You can connect a switch to your circuit. You can flip the switch on and off. When the switch is on, there is a closed path or circuit for the flow of electrons. When it is off, the path is broken. अच्छा, एक सिंपलर वे है ना किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन या क्लोज करने का, वो है स्विच के थ्रू। अगर आप स्विच को अपने सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, स्विच को फ्लिप कर सकते हैं ऑन या ऑफ, और जब स्विच ऑन है तो क्लोज पाथ है ना, मतलब आप स्विच ऑन है तो आपका जो सर्किट है वो क्लोज है, यानी पाथ जो आपका क्लोज है, और जब आपका स्विच ऑफ है तो आपका पाथ जो है वो ब्रेक हो चुका है। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो एनी मोर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन सर्किट, इट फ्लोज ओनली थ्रू अ क्लोज सर्किट. आप देखिए, जब ऑफ है तो पाथ ब्रेक हो गया है, पाथ ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वो ओपन सर्किट में कभी भी नहीं करती, हमेशा क्लोज्ड सर्किट में करती है. Every time you turn an appliance on or off, you are closing or opening a circuit. Since making drawings of the batteries, bulb and switch rails in their actual shape is time consuming and complicated, the symbols shown in figure 11.8 are used to draw a circuit. तो देखिए, हर बार जब भी आप किसी अप्लायंस को ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो आप सर्किट को या तो ब्रेक कर रहे हैं या फिर आप क्लोज कर रहे हैं. ओके, अच्छा देखिए, अगर हम बैटरीज की ड्राइंग बनाना शुरू कर दें, बल्ब की, स्विचेस की, उनकी एक्चुअल शेप में, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा और कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना. तो इसीलिए इनके लिए सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है. जैसे देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, बैटरी, ये इलेक्ट्रिक लैम्प या बल्ब है, क्लोज्ड की, एंड दिस इज ओपन की. ओके, The essential components of a simple circuit are, अब simple circuit में आपके क्या क्या component होने चाहिए, which are essential यानी important. A source of electric current, say a battery, a key or a switch. क्यों switch किस लिए चाहिए, circuit को on या off करने के लिए, break या उसको close करने के लिए. An electric appliance obviously and connecting wires. Activity 1. To show a simple electric circuit and test the conditions under which electricity flows. ये आपने जो ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, आई एम श्योर आपने क्लास 6 में भी बनाया होगा. चलिए देखते हैं इसका मैथड क्या है. टेक अ टॉर्च बल्ब, अ स्विच, अ सेल एंड सम कनेक्टिंग वायर्स. कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू वन एंड ऑफ द स्विच विद अ वायर. Join the other end of the switch to one end of the bulb and the other end of the bulb to the negative terminal of the cell. The circuit is now ready. Now close the switch by putting it in on position. You will see that the bulb starts glowing. The bulb glows because the path for the current to flow is complete and the current flows in the circuit. देखिए, आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि टॉर्च बल्ब, आपका स्विच, सेल एंड ऑब्वियसली कुछ कनेक्टिंग वायर्स. आपने कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू वन एंड ऑफ द स्विच वायर के साथ. फिर जो अदर एंड है उसको आपने ज्वाइन करना है, अदर एंड ऑफ द स्विच ज्वाइन करना है टू वन एंड ऑफ द बल्ब, एंड अदर एंड ऑफ द बल्ब जो है उसको आपने कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ सेल के. फिर जो सर्किट है आपका रेडी है. अब आप इस सर्किट को क्लोज कर सकते हैं. कैसे? आप स्विच को क्लोज कीजिए बाय पुटिंग इट इन ऑन पोजीशन,
आप देखेंगे बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट करेगा। बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि जो करंट की फ्लो को एक पाथ मिल गया है, वो कंप्लीट हो चुका है ना, और इस सर्किट में आपका जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, राइट। देखिए आपका स्विच जो है इसमें ऑन पोजीशन में फिगर 11.9 और अगर आप बी पोजीशन की बात करेंगे, देखिए स्विच देखिए, अब आपका स्विच क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। स्विच ऑफ हो गया, दैट मीन्स आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो चुका है। तो क्या इस ऐसी कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। Now replace one of the connecting wires with a thick cotton thread. The bulb will not glow as the cotton thread is an insulator and will not allow the electrons to move through it. Thus, for a current to flow, all parts of the circuit should be connected by a conductor. Again, open the key and see what happens. The bulb does not glow because there is a gap in the circuit and the electrons cannot jump across this gap to maintain the flow. Figure 11.9b. Thus, we see that the circuit has to be complete for current to flow through it. अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, जो कनेक्टिंग वायर्स है ना, वन ऑफ द कनेक्टिंग वायर को आप रिप्लेस कर दीजिए कॉटन थ्रेड के साथ, थिक कॉटन थ्रेड के साथ, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि जो कॉटन थ्रेड है एक्चुअल में वो इंसुलेटर है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प ही नहीं करेगा। तो इसीलिए करंट को हमें फ्लो कराना है तो जितने भी पार्ट्स हैं ना सर्किट्स के, वो एक कंडक्टर के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। और 11.9 फिगर बी में जो बी पार्ट था उसमें क्या था कि अगर हम की को ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा, राइट, क्योंकि वो अपने सर्किट के बीच में ना गैप आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है उस गैप में जंप तो करेंगे नहीं, है ना। तो आप देख, जो सर्किट अगर आपका कंप्लीट है, क्लोज्ड है, तभी आपका जो है करंट फ्लोस में करेगा। रेजिस्टेंस, the electrical resistance of a circuit component or device is defined as a ratio of voltage applied to the electric current which flows through it. R is equals to V by I. The unit of resistance is ohm. Different wires have different resistances. Copper wire has less resistance than iron wire. Copper is a good conductor while iron is a poor conductor. Non-conductors lack mobile charges and so resist the flow of electric current. देखिए जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट कंपोनेंट का या डिवाइस का, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट व्हिच फ्लोज थ्रू इट। दिस इज द फॉर्मूला। वोल्टेज, वी फॉर वोल्टेज, रेशियो है ना वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का। सी, रेजिस्टेंस रेशियो होता है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का, एंड जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, याद रखिएगा, दैट इज ओम। अब डिफरेंट वायर्स के डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि कॉपर वायर का लेस रेजिस्टेंस होता है देन आयरन वायर, यानी कि कॉपर आपका गुड कंडक्टर है जबकि आयरन आपका पुअर कंडक्टर है। एंड नॉन कंडक्टर्स में आपके जो मोबाइल चार्ज नहीं होते, तो क्या होते हैं, मोबाइल चार्जेस नहीं होते, तो क्या होता है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करते हैं, यानी उन्हें फ्लो करने में हेल्प करते ही नहीं। 11.6 मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। You are already familiar with magnetism. You have read about magnetic substance such as iron, nickel in your previous class. Here is an interesting experiment for you to do. Bring a compass near a wire carrying electric current. The best place to hold the compass is just above or below the wire but parallel to it. Okay. आपको मैग्नेटिज्म के बारे में पता है ना, आपने मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था जैसे कि आयरन, निकल में प्रीवियस क्लास में। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आपने कंपास को लेकर आएंगे एक वायर के पास विच इज़ कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। तो बेस्ट प्लेस जो है कंपास को होल्ड करने का क्या है कि वायर के जस्ट अबव या जस्ट बिलो, बट पैरेलल होना चाहिए। यू नो द पैरेलल लाइंस मीन्स दिस तरह से होना चाहिए। Observe what happens to the compass needle when electricity is flowing through the wire and when the current is reversed. What do you observe? On bringing the compass near the current carrying wire, its needle is deflected from its position. On reversing the current, the needle is deflected in the opposite direction. Can you suggest a possible link between electricity and magnetism? देखिए, जब आप कंपास को उस करंट कैरिंग वायर के पास लेके जाएंगे, उसकी जो नीडल है अपनी पोजीशन से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स करेंगे तो जो नीडल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। मैग्नेटिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज बोथ इन्वॉल्व मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। In the 19th century, scientists discovered something quite remarkable. An electric current flowing through a wire gives rise to a magnetic field surrounding the wire. अच्छा, तो क्या लिंक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच? देखिए, क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि दोनों में ही मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने कुछ
डिस्कवरी की थी, ठीक है, डिस्कवर किया इसके बारे में कि जो एक इलेक्ट्रिक करंट होता है जब वो वायर के थ्रू फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड को राइज करता है उस वायर के सराउंडिंग। दस मैग्नेटिज्म कुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। Equally important was the discovery that a looped or coiled wire acted like a magnet when a current was made to pass through it. The more coils the wire had, the greater the strength of the magnet. It then occurred to scientists that coiling a conductor around a piece of soft iron would produce an even more powerful magnet. Powerful temporary magnets called electromagnets can be made by wrapping a coil of wire around a soft iron core and passing current through it. अच्छा, एक important discovery और की थी उन्होंने कि जैसे कि लूप्ड या जो coiled wire है ना वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है जब करंट उसके थ्रू पास होता है। जितनी ज़्यादा कॉइल्स होंगी वायर में उतना ही ज़्यादा मैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा ज़्यादा। तो जैसे जो पावरफुल टेम्पररी मैग्नेट्स जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहा जाता है उनको बनाया जाता है कैसे, बाय रैपिंग अ कॉइल ऑफ वायर, और उसको रैप करना है एक सॉफ्ट आयरन कोर में और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। 11.7 इलेक्ट्रिक बेल। An electric bell is a mechanical bar that functions by means of an electromagnet. It is based on magnetic effect of current. When electric current is applied, it produces a repetitive buzzing or changing sound. The construction of electric bell consists of a gong or horseshoe electromagnet with soft iron core, a metallic spring stripe P, a battery or mains, a soft iron armature, a hammer edge, an adjustable screw and a switch or bell push. देखिए इलेक्ट्रिक बेल है आपकी एक मैकेनिकल बेल है जो आपके फंक्शन करती है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एक रेपिटेटिव बजिंग या चेंजिंग साउंड ही प्रोड्यूस करता है। तो देखिए आपके इलेक्ट्रिक बेल में आप क्या क्या होता है, देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, गॉन्ग या हॉर्सशू मैग्नेट जिसमें सॉफ्ट आयरन कोर, मेटालिक स्प्रिंग स्ट्राइप पी एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके, जो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं सारे। The hammer edge is attached to the armature which is fixed with spring stripe P. In switch off position, the screw touches the strip. The terminals T1 and T2 are connected to electromagnetic windings. One terminal directly and the other terminal through metallic stripe P and screw B. The battery and switch S are connected in series across terminals T1 and T2. अच्छा देखिए जो हैमर है आपका H, दिस इज अ हैमर, H रिप्रेजेंटेड बाय H, ये अटैच किया जाता है आर्मेचर के साथ जो आपके फिक्स होता है स्प्रिंग स्ट्राइप P पे। स्विच ऑफ की पोजीशन पे जो स्क्रू होता है वो स्ट्राइप को टच करता है, तो जो आपके टर्मिनल्स है ना T1 एंड T2 ये कनेक्टेड होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग के साथ। तो एक टर्मिनल डायरेक्टली और जो दूसरा टर्मिनल होता है वो मेटालिक स्ट्राइप P एंड स्क्रू B के थ्रू। तो जो बैटरी एंड स्विचेस है, स्विच एस है, वो कनेक्टेड होता है एक सीरीज में अक्रॉस टर्मिनल्स T1 एंड T2. Now working, electric current flows through the coil when switch is turned on, the core of magnet gets magnetized. So soft iron armature A is attracted towards magnet and the hammer strikes the gong and the bell rings. When the armature is attracted towards the electromagnet, the screw loses its contact with stripe and so current flowing in windings of electromagnet stops. Consequently, the electromagnet loses its magnetism and the armature retains its normal position due to a spring effect and touches the screw again. The current in circuit begins to flow again. As a result, the electromagnet gains its magnetism and attracts the armature and the hammer strikes the gong again. The process repeats itself and you hear a ringing sound as the hammer keeps hitting the bell until the switch is turned off. देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा आपका कॉइल में जब स्विच को ऑन किया जाएगा, है ना, तो जो कोर है मैग्नेट का वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जो सॉफ्ट आयरन है आर्मेचर ए का वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, और हैमर जो है स्ट्राइक करेगा गॉन्ग को और जो बेल है वो रिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपका आर्मेचर अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ तो जो स्क्रू है अपना वो कॉन्टैक्ट लूज कर देगा स्ट्राइप के साथ। सो जो करंट फ्लो कर रहा है आपका वाइंडिंग्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट के वो स्टॉप हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपना मैग्नेटिज्म
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज करेगा, फिर जो आर्मेचर है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन रिटेन कर लेगा बिकॉज ऑफ स्प्रिंग इफेक्ट, और फिर स्क्रू को टच करेगा, फिर करंट इसके बाद सर्किट में फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है फिर से मैग्नेटिज्म गेन करेगा एंड आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, और जो हैमर है वो गॉन्ग को स्ट्राइक करेगा। तो ये प्रोसेस अपने आप ही चलता रहता है और आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, क्योंकि हैमर जो है वो बेल को हिट करता रहता है जब तक कि स्विच को आपका स्विच जब तक आप उसे ऑफ ना करें। की पॉइंट्स, अ फोर्स दैट पुशेस ऑब्जेक्ट टुगेदर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Remember that the SI unit of electric charge is coulomb or capital C. The flow of electrons through wire is called electric current. The ampere is a unit of measurement of the rate of electron flow or current in an electrical conductor. Ampere आपका एक unit of measurement है, current को measure करने की जो unit है, that is ampere. Remember that. The common sources of current are chemical base cells, solar cells and dynamos. Human body is a good conductor of electricity. Fuse is a short piece of wire with low melting point which protects us against too much current flow. The path along which the current flows is called a circuit. Materials which allow electric current to pass through them are called conductors. Charges moving along a wire have energy which can be transformed into different forms. A steady current flowing in one direction only is called direct current or simply DC. A steady current flowing in one direction only is called direct current or simply DC. The electric current which moves back and forth reversing its direction regularly is called alternating current or simply AC. To make self-handling of electric appliances, the metallic bodies are earthed. An electric current flowing through a wire gives rise to a magnetic field around the wire. Powerful and temporary magnets are called electromagnets. An electric bell is a mechanical bell that functions by means of an electromagnet. Children, I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।